Hello dear friends, this video is going to be interesting, especially for the parents जिनके बच्चे फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में हैं and parents जो दुविधा में हैं कि what should be taken by their ward in 11th standard, whether they should go for maths group or a bio group if they are opting for science. तो पूरा ये वीडियो जो है आज का वो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ द मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप, देयर प्रोस एंड कॉन्स. सो लेट्स बिगिन विद द कंपैरिजन. टू बिगिन विद पीसीबी, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोस. नाउ लाइक देयर आर diverse career options in life science. बायोलॉजी इसलिए हम इसे लाइफ साइंस बोलते हैं. The doors are open for career in medicine like doctor, dentistry, veterinary, physiotherapy, and elite fields like biotechnology, microbiology, genetics, and biochemistry. Here, the focus will be on the human and natural science, which is ideal for the students who have interest in human body, nature, or something like ecology. There is a high demand in healthcare region and the medical field जो है वो consistent रहा हुआ है worldwide, and it is really like top rated field for any student in life. Also there is a great opportunity in research because like drug research, environmental science, biomedical science, these are all elite fields whose fields are open for the students who have taken up the biology. Coming to the disadvantage of biology, like becoming a doctor involves a very rigorous practice for 2 years to clear the exams like NEET, और बच्चे को एक फोकस्ड स्टडी पैटर्न होना चाहिए 2 साल तक. नॉन बायोलॉजिकल करियर ऑप्शंस जो है उसमें without maths when we talk about, so access to the engineering, physics और computer related fields वो restrict हो जाता है. टाइम जो इन्वॉल्व होता है फॉर मेडिकल स्टूडेंट वो अराउंड 6 to 8 years ऑफ होराइजन पकड़ के हम चले, बिकॉज उसमें बेसिक एजुकेशन, देन स्पेशलाइजेशन एंड देन सुपर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड. Also, the students who are opting for biology should have a good knack on memorization techniques because it requires an extensive learning biological terminologies, the processes, the systems which every student might not be comfortable. So ये थोड़ा बहुत एक rough idea for PCB students के लिए है. Now coming to PCM, that is physics, chemistry and maths. Pros for students who are opting for PCM. It opens up the career opportunities because mainly it is an engineering field. So your core branches are like civil, computer science, mechanical, electrical, apart from architecture, astronomy, and the pure sciences like BSc physics हो जाएगा या केमिस्ट्री हो जाएगा. सो ये सारी ब्रांचेस ओपन हो जाती है फॉर द स्टूडेंट हु आर गोइंग विथ PCM. व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन? व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स शुड टेक PCM? इफ यू हैव लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, माइंड हैज टू बी देयर, एप्लीकेशन हैज टू बी देयर. सो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, and wide range of problem solving which is required to clear the exams like JEE Mains या JEE Advanced या even state level engineering colleges, that has to be there. जो उनका entry point है of getting into the job market compared to medicine वो थोड़ा सा fast है because वो 4 साल और कुछ 2 साल का और specialization कर दिया तो उसका advantage maths group वाले बच्चों को मिल जाता है. Limitations also लाइक जो बायोलॉजी में बहुत सारे फील्ड आपके खुल जाते हैं, मैथ्स के अंदर
ये चीज नहीं हो पाती है। आइदर इट इज इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम ऑप्शंस आपके हाथ में रह जाएंगे। एंड जो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम आती है, इफ नॉट इंजीनियरिंग देन व्हाट, दैट बिकम्स अ मेजर इश्यू फॉर द स्टूडेंट्स। एंड जो कॉम्पिटिटिव फील्ड्स है जिसमें लाइक आप इंजीनियरिंग बोल दो या आईटी या कंप्यूटर साइंस बोल दो, उन सब फील्ड में आप कहां से कर रहे हो इंजीनियरिंग, कौन सी कॉलेज से कर रहे हो इंजीनियरिंग, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अनदर ड्रॉबैक इज अबाउट जॉब सैचुरेशन। देयर आर मेनी फील्ड्स जिसके अंदर धीरे धीरे जॉब सैचुरेशन आ चुका है। सो अनलेस एंड अनटिल हमारे अंदर खुद के अंदर अगर तो इनोवेटिव अप्रोच नहीं होता है, देन द स्टूडेंट का सक्सीड होना in engineering becomes very difficult. So what should be your key factor? So whether आप जो भी गोल ले रहे हो, चाहे वो PCB हो या PCM हो, ये आपका करियर गोल क्या, किस तरफ जाना है, that clarity has to be there. You should not be influenced by the external factors कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके अंकल क्या करते हैं, सराउंडिंग में कोई क्या कर रहा है। आपका खुद का पैशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू फील दैट यू आर मेंट फॉर बायो, डोंट वरी, हो सकता है थोड़ा सा लंबा रास्ता है, बट गो फॉर दैट। आपको लगता है कि आपसे लर्निंग नहीं हो पा रहा है, आप डायग्राम में परफेक्ट नहीं हो और फिर भी आपको साइंस में जाना है, देन गो विथ मैथ्स ग्रुप। ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर आपकी फैमिली की सिचुएशन, ओवरऑल इंडस्ट्रीज में आने वाले चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू टेक अप आफ्टर 10th। बट रिमेंबर देयर इज नो यू टर्न। एक बार आपने जो डिसाइड कर लिया, उसके बाद अगर तो आप सोचोगे कि मैं मैथ्स से बायो में चला जाऊं या मैं उससे मैथ्स में चला जाऊं,